اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل اگلی ڈکلنگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ناچیز کو روبینہ حمید شکلگار کہتے ہیں۔ میں پچھلے 15 سال سے انجمن خیرالاسلام اردو ہائی اسکول ستارہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہوں، اور آج ہم آپ کی کتاب سے آپ کی پہلی نظم پڑھیں گے جو ہے مناجات، جس کے شاعر ہیں آغا حشر کاشمیری۔ آئیے پہلی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی بستی میں بہت دنوں تک بارش نہیں ہوئی۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ کسان فکر مند تھے کہ بارش نہ ہوئی تو کھیتوں میں فصل نہ ہوگی اور فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ ایک دن تمام لوگوں نے طے کیا کہ بستی کے باہر جا کر خدا سے دعا کی جائے۔ سب لوگ بستی سے باہر جانے لگے۔ ایک بھیڑ میں ایک بوڑھے نے دیکھا کہ ایک بچی ہاتھ میں چھتری لیے چل رہی ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، بارش تو ہو نہیں رہی ہے، تم چھتری کیوں ساتھ لائی ہو؟ یہ سن کر بچی نے کہا، ہم خدا سے دعا کریں گے تو بارش ہوگی نا، اس لیے میں چھتری لے کر آئی ہوں۔ اس ننھی سی بچی کو پورا بھروسہ تھا کہ خدا ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ خدا ہماری دعا قبول کرے گا، اس یقین اور تڑپ کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ مناجات ایسی نظم ہے جس میں حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ چلیے تو یہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ مناجات کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جان پہچان کے ذریعے شاعر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ اردو کے مشہور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری 3 اپریل سن 1879 کو بنارس میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام آغا محمد شاہ تھا۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت لکھا۔ انہوں نے ممبئی کی چند تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہونے کے بعد شیکسپیئر تھیٹریکل کمپنی قائم کی۔ آغا حشر کاشمیری نے کئی ڈرامے لکھے جن میں یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب، سید ہوس، ترکی حور اور خواب ہستی قابل ذکر ہیں۔ آغا حشر کاشمیری شاعر بھی تھے۔ اپنے ڈراموں میں انہوں نے بہت سے گیت اور نظمیں بھی شامل کی ہیں۔ 28 اپریل سن 1935 کو ان کا انتقال لاہور میں ہوا۔ آئیے اب ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں، اس مناجات کی طرف جاتے ہیں جو آپ کی کتاب میں ہے، سامنے دی گئی ہے۔ بہت اچھی مناجات ہے یہ، چلیے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے۔ صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، صلح تھی کل جن سے اب وہ برسرے پیکار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں۔ رحم کر اپنے آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے،
आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए, ख्वार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं, हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। चलिए शेर दर शेर तशरीह करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। पहले ही शेर में शायर ने तकलीफ दर्द को हमारे सामने रख दिया है। जब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जब हमें दर्द होता है तो हमारे ज़ुबान से आह निकल जाती है, वो इल्तिजा होती है, मदद की पुकार होती है। वैसे ही मदद की पुकार शायर के दिल से निकली है और शायर कहते हैं कि ए बादलों हट जाओ, आह मेरे ज़ुबान से निकली हुई आह, मेरे दिल से निकली हुई आह फलक पर जाने को बेताब है, और बादलों हट जाओ रास्ते से और मेरी आह को आसमान तक पहुंचने दो, उस दो जहान तक पहुंचने दो कि मेरी आह जाएगी और अल्लाह ताला के दरबार से रहम लेकर आएगी। ए दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम के, ए खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। अब यहाँ पे देखिए दूसरे शेर के पहले मिसरे में शायर ने दुआ से कहा है कि ए दुआ तू जाना और अर्शे इलाही थाम कर मेरा मकसद, मेरा मतलब, मेरी ख्वाहिश अल्लाह ताला के रूबरू रखना। ए दुआ हाँ अर्ज कर, हाँ यानी जरूर अर्ज कर, अर्शे इलाही थाम कर, अल्लाह ताला का दामन थाम कर मेरी अर्ज उस तक पहुंचा। और फिर अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कह रहे हैं दूसरे ही मिसरे में कि ए खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के, यानी अब मेरी दुख और तकलीफ मेरे बर्दाश्त के बाहर है, अब तू मेरे दिन फेर दे। ये जो गर्दिश है दिन और रात एक के पीछे एक आते रहते हैं, मेरे लिए मुसीबत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब मेरे दिन फेर दे, अब ये गर्दिश अय्याम को फेर दे, यानी गर्दिश तो नहीं बदलेगी लेकिन अच्छे दिन आए मेरे लिए, जो दिन आए वो खुशी का पैगाम लेकर सुकून की नींद ले सकूं, ऐसी रात मुझे नसीब कर। ढूंढते हैं अब मुदावा सोज़शे गम के लिए, अब हम कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, अपनी तकलीफों का इलाज ढूंढ रहे हैं, गम की जिस तकलीफ में हम मुब्तला हैं हम उसका इलाज चाहते हैं, हम उस तकलीफ से बाहर आना चाहते हैं, कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए, और हमारा दिल जो इस दुख और तकलीफ से परेशानियों से छलनी हो गया है, हमारा दिल खुद एक जख्म बन गया है, तो हमारा दिल और हमारे दिल के जख्म जो है वो फरियाद कर रहे हैं, मरहम तलब कर रहे हैं, मरहम की फरियाद कर रहे हैं। देखिए कितना मजबूर हो जाता है इंसान, बहुत सारी चीज़ों में मुब्तला होकर, बहुत सारी तकलीफ़ों में मुब्तला होकर। ऐसा होता है हमेशा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिस पे इंसान का बस नहीं चलता, उसकी जो तकलीफ़ है ऐसा लगता है कि ये हमारी तकलीफ़ अल्लाह ताला ही दूर कर सकता है, जो हमें परेशानी में डालता है वही हमें परेशानी से निकाल सकता है। वैसे ही तासुरात शायर ने यहाँ पर पेश किए हैं और कह रहे हैं हम हमारे गम का इलाज ढूंढ रहे हैं, हमारे जख्म जो हैं फरियाद कर रहे हैं मरहम के लिए, अब हम ठीक होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी तकलीफ दूर हो जाए। सुलह थी कल जिनसे अब वो बरसरे पैकार हैं, वक्त और तकदीर दर पे आजार हैं, आजार का मतलब होता है तकलीफ पहुंचाना। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सुलह थी कल तक जिनसे हमारी सुलह थी, हमारे जिनसे अच्छे ताल्लुकात थे, आज वो हमें तकलीफ पहुंचाने के दर पर हैं। और ऐसा आगे बढ़कर शायर क्या कह रहे हैं, वक्त और तकदीर, यानी जब वक्त बुरा होता है इंसान का तो कोई भी साथ नहीं देता, तो फिलहाल हमारा वक्त बुरा चल रहा है, हमारा वक्त खराब चल रहा है, तो हमारे दोस्त भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, जिनसे कल तक हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, जो हमारे दोस्त बनकर फिरते थे, जो हमारे हमदर्द बनते थे, आज वो सब हमसे मुकर रहे हैं, वो कोई भी हमारी मदद करने को आगे नहीं आता है, कोई भी हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त और तकदीर
दोनों ही हमारे दुश्मन बने हुए हैं, दोनों ही हमें जख्मी करने, हमें तकलीफ पहुंचाने, हमें ज़र्ब करने के पीछे पड़े हुए हैं। रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। अब यहाँ पे शायद अल्लाह ताला को उसके रहमान और रहीम होने की याद दिला रहे हैं कि अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, सत्तार है, गफ़ार है। तू हर बंदे पे रहम करता है, जो तेरे नाफरमान बंदे हैं उन पर भी रहम करता है, जो तेरे फरमाबरदार बंदे हैं उन पर भी रहम करता है। तो तेरा आईना करम रहम है, तू रहम का पैकर है, 70 माओं का प्यार अपने दिल में रखने वाला है। तुझसे ज्यादा हमारी तकलीफ को कौन समझ सकता है। इसीलिए शायर कह रहे हैं कि बेशक हम तुझे भूल गए हैं, हमने तेरी नाफरमानी की है, नमाज रोजा कुरान हर चीज के लिए हम हर चीज को हम कल पर टाल देते हैं, हमें माफ कर दे। हम तुझे भूल गए हैं लेकिन तू हमें मत भूल, यानी हम जैसे भी हैं तेरे ही बंदे हैं, हम पे रहम कर, क्योंकि तेरा आईने करम यानी तेरी अदा, तेरी खूबी रहम करना है, करम करना है। एक नजर हो जाए आका अब हमारे हाल पर, डाल दे पर्दे हमारी शामत आमाल पर, यानी जो दुर्गति हमारी चल रही है, जो बुरे हालात हमारे हो रहे हैं, उन सब पर तेरी एक नजर ही काफी है। कहते हैं ना कि अल्लाह कुन और फयकुन, इतना ये दो लफ्ज के अल्लाह ताला के रहम करम पर हैं हम। अल्लाह ताला कुन कहेगा तो हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, बस अल्लाह कहता है हो जा तो कोई भी चीज हो जाती है। वैसे ही शायर कह रहे हैं कि एक नजर, सिर्फ तेरी एक नजर मेरे हाल को अच्छा करने के लिए, मेरे हाल को बहाल करने के लिए काफी है। तो सिर्फ एक नजर डाल दे आका, ऐ मेरे आका मेरे हाल पर सिर्फ एक नजर कर दे, डाल दे पर्दे हमारी शामत आमाल पर, और हमारी जो आमाल है, जो हमारे बुरे आमाल हैं उस पर पर्दा डाल दे, उसको नजरअंदाज कर, हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर और हम पर रहम कर। खल्क के रांधे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए, यानी हम दुनिया के ठुकराए हुए हैं, लोगों के जुल्म का शिकार है, लोगों ने हमें परेशानी में डाल के रखा है, लोगों ने हमें धुतकारा है, दुनिया ने हमें ठोकर, हम दुनिया की ठोकरों में हैं और लोगों ने हमें धुतकारा है, हमारे हाल पर किसी को रहम नहीं आ रहा है। आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए, और जब इंसान सबसे मायूस हो जाता है तो उसके पास एक ही चौकट होती है, एक ही आसरा होता है, एक ही जगह होती है जहाँ वो अपनी दुख और तकलीफ लेकर जाए, सुनाए। तो कह रहे हैं कि अब हम तेरे दर पर आए हैं और हाथ फैलाकर तुझसे रहम की भीख मांग रहे हैं, हमारे हाल पर रहम फरमा। ख्वार हैं बदख्वार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। अब यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं, ये शायर इस बात का एतराफ़ करते हैं, इस बात को मानते हैं कि हम ख्वार हैं, हम बहुत बुरे हैं, हमसे हर चीज़ में कोताही हो जाती है, हम इबादत में कोताही करते हैं, हम नेकियां करने में कोताही करते हैं, बहुत बदकार हैं हम, बुरे कामों में डूबे हुए हैं और इसी वजह से हम जलील होते रहते हैं हर जगह। लेकिन फिर आगे कह रहे हैं शायर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे अल्लाह अपना महबूब बताता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहते हैं कि जो तुझे अजीज है, हम उसके प्यारे हैं, हम उसकी उम्मत में से हैं। बेशक हम ख्वार हैं, बदख्वार हैं, जलील हैं, हमेशा कोताही करते रहते हैं, लेकिन हम जैसे भी हैं तेरे महबूब की उम्मत में से हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हम हैं। तो हमारी जो हालात हैं उस पर रहम फरमा। हक परस्तों की अगर की तूने दिलजोई नहीं, ताना देंगे बुत कि मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। कि अगर हक पर चलने वालों की, हक इसलिए कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने रास्ता बताया है वही हक का रास्ता है, हम उससे गुमराह हो जाते हैं, हम उस पर चलते नहीं हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अल्लाह एक वाहिद ज़ात है। हाँ, हमारे आमाल में बहुत सारी कोताहियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि हम हक परस्त हैं,
حق ایک ہی چیز ہے جو اللہ ہے. حق یعنی جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، سچ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہم تیرے ماننے والے ہیں. اگر تو نے ہماری دلجوئی نہیں کی، اگر تو نے ہمارے حال پر رحم نہیں کیا، اگر تو نے ہمارے حال کو بہتر نہیں کیا، ہمیں مصیبتوں سے نکالا نہیں، تو یہ جو بت پرست ہیں، یہ جو بت کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ ہمیں تانا دیں گے کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں. تو ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم عبادت کا ارادہ کرتے ہیں. ہماری تکلیفوں کو دور کر، ہماری دلجوئی کر، ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو زیر کر دے، ختم کر دے. ہمیں ہمارے دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع مت دے. اس نظم میں شاعر خدا کے حضور اپنی فریاد پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اے بادلوں، راستے سے ہٹ جاؤ اور میری فریاد کو آسمان پر جانے کے لیے راستہ دو. وہ اپنی آہوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم خدا سے التجا کرو کہ اے خدا ہمارے مصیبت بھرے دلوں کو پھیر دے. ہم اپنے دل کے زخموں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں. ہماری حالت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ مل جل کر رہنے والے ہم سے لڑنے اور تکلیف پہنچانے پر تلے ہیں. ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما. ہم دنیا کے ٹھکرائے ہوئے سہی مگر تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. اگر تو نے ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو بتوں کو ماننے والے ہمیں تانا دیں گے کہ مسلمانوں کا کوئی خدا نہیں. آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو تشریح کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جلدی میں اپنا اگلا ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے سامنے پھر حاضر ہوتی ہوں. تب تک اپنا خیال رکھیے، گھر پر رہیے، محفوظ رہیے. میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے، اب تک میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ.